Hello friends, welcome to our channel The Literature Cabin. Today we will try to understand and analyze S.T. Coleridge's very famous poem Kubla Khan. तो अगर आपको ये poem thoroughly समझना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लिटरेचर रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. S.T. Coleridge composed the poem Kubla Khan in the year 1797 and published it in 1816. तो उन्होंने लिखा था 1797 में और पब्लिश किया था 1816 में. And the full title of the poem is Kubla Khan or A Vision in a Dream, a Fragment. कहा जाता है कि कुबला खान S.T. कोलरिज ने अपने ड्रीम में कंपोज किया था. So one night in the summer of 1797, Coleridge consumed opium, which was prescribed to him because of his ill health, and from the effects of which he fell asleep in his chair. तो हुआ यूं कि कोलरिज उस टाइम पे काफ़ी बीमार रहते थे जिसकी वजह से उन्हें ओपियम प्रिस्क्राइब किया गया था मेडिसिन के तौर पे. तो एक दिन उन्होंने ओपियम लिया और उसके बाद उन्हें एक गहरी 3 घंटे की लंबी नींद आ गई और नींद में जाने से पहले वो एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था पिलग्रिमेज और जिसे लिखा था परचेस ने. और उस किताब की ये लाइन पढ़ते पढ़ते कोलरिज सो गए. लाइन क्या था? लाइन था ये कि हियर द कुबला खान कमांडेड अ पैलेस टू बी बिल्ड एंड अ स्टेटली गार्डन देयरअनटू, and thus 10 miles of fertile ground were enclosed with a wall. So these were the lines which Coleridge was reading before he fell asleep. The poet then saw a vivid dream in his 3 hour long sleep. तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया. After waking up, he took a pen and a paper and started writing down the lines of this poetry. But ठीक उसी वक्त unfortunately there came a person who came to meet him on business. और उस आदमी से बातचीत करने के बाद जब पोएट लौट कर आए तो वो आधे से ज़्यादा लाइन भूल चुके थे और उन्होंने बाद में उसे रिमेंबर करने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर पाए. तो इसीलिए कहा जाता है कि द पोएट्री इज स्टिल अनफिनिश्ड. So that is the story behind the composition of this poem Kubla Khan, a very interesting story. The poet composed the poem in his dream. He got up from his sleep and started writing the poem, the lines of the poem that we see now. But unfortunately, there came a person to meet him, and then suddenly, after he got over with his conversation, he forgot everything about the poem, and that's why the poetry is still unfinished. So let's now start reading the poem and let's try to understand the poem. So the first stanza, देखिए क्या लिखा है. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. तो Xanadu इज़ अ फिक्शनल प्लेस. जनाडू बोलकर कोई एक्चुअल जगह नहीं है. एटलीस्ट इसका कोई हिस्टोरिकल या फिर जियोग्राफिकल एविडेंस तो हमें नहीं मिलता है. तो वी कंसिडर इट टू बी अ फिक्शनल प्लेस. Kubla Khan now is a historical figure. He is this Mongolian emperor and he is also the grandson of Chinggis Khan. So he was a very powerful emperor. So Kubla Khan, the poet is writing that Kubla Khan has decreed to build a pleasure dome. Now, what is a pleasure dome? A pleasure dome is a dome-shaped building which is to be made for the recreation and pleasure of the king. तो किंग के रिक्रिएशन के लिए एक डोम शेप्ड बिल्डिंग बनाया जाएगा. तो कुबला खान हैड डिक्रीड टू मेक अ स्टेटली, दैट मीन्स अ रॉयल प्लेजर डोम इन Xanadu. Now, where is Xanadu? Xanadu is where Alph, the sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So, Xanadu stands by the river Alph. Now, Alph is not an actual river either. कहा जाता है कि the poet took the name Alph from the first letter of the Greek alphabet, alpha, जिसका मतलब है कि it is the first letter of the Greek alphabet, that's why it's sacred, that's why from there the poet most probably took the name Alph, that's why it's a sacred river.
Now, the river can also be the symbol of life. And the river Alf runs through caverns measureless to man. So the river runs underground. Caverns, caves, it moves through caves which are measureless to man, which is unfathomable to man. ह्यूमन बींग्स उसे माप नहीं सकते, इतनी गहरी गुफाओं से वो रिवर होके गुजरता है. और जाकर कहाँ मिलती है ये रिवर? इट गोज डाउन टू अ सनलेस सी. नाउ सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ. Sunless sea which is devoid of life, that means it can be the symbol of death. So the Alf, the sacred river which is the symbol of life, goes through caverns measureless to man, through mysterious caverns, like life itself is takes mysterious turns sometimes, and it goes down to a sunless sea, which means that life goes down to death. So the river and the sunless sea becomes the symbol of life and death. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. So after Kubla Khan decreed to make the pleasure dome, his servants decided to decided to enfold 5 miles of fertile ground. So twice 5 miles of fertile ground. Twice 5 miles मतलब 10 miles. 2 बार 5 मील मतलब 10 मील. तो 10 मील जमीन वॉल्स और टायर से घेर दिया गया. गर्डल राउंड मतलब घेर दिया गया, enclosed. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. So with walls and towers, 5 miles of twice 5 miles, that means 10 miles of fertile ground were enclosed with walls and towers. And there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree. और कुबला का जो गार्डन था जिसे घेर दिया गया था वॉल्स और टावर से, वो कैसा था? इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन्स विथ सिन्यूअस रील्स. सिन्यूअस रील्स मतलब सनी स्ट्रीम्स, ट्विस्टेड स्ट्रीम, छोटे छोटे झरने हुआ करते थे वहां पे, छोटी छोटी नदियां हुआ करती थी वहां पे. सॉरी, झरने नहीं, नदियां हुआ करती थी वहां पे. Where blossomed many an incense-bearing tree. Incense मतलब होता है fragrance, खुशबू. और उस गार्डन में क्या थी? Apart from sinuous rills, there were incense-bearing tree. पेड़ जिसमें खुशबूदार फूल खिलते थे. तो fragrant flowers used to bloom there in the trees which were there in the garden. And here were forests ancient as hills enfolding sunny spots of greenery. And there were forests outside the garden which were as ancient as hills. वहाँ पे जंगल थे जो कितने पुराने थे जितने पुराने पर्वत हुआ करते हैं. और उस जंगलों ने घेर कर रखा हुआ था कुबला के गार्डन को. तो the garden of Kubla Khan, the sunny spots of greenery, the greenery which means the bright green garden that Kubla Khan had. Then the sun rays used to fall on that garden. That's why it is called sunny spots of greenery. Now the sunny spots of greenery were enfolded, मतलब घिरा हुआ था, by the forests which were as ancient as hills. So now let's move on to the next stanza. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover. Now see that in the beginning the poet is exclaiming. There is an exclamation mark, but oh. So the poet is exclaiming out of wonder, out of amazement. Poet ने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर वो बिल्कुल amazed हो गए हैं. तो क्या देखा है पोइट ने? पोइट देख रहे हैं कि देयर इज दिस डीप रोमांटिक chasm. Now what is a chasm? A chasm is basically an opening into the earth. जब अर्थक्वेक से या फिर किसी और वजह से धरती फट जाता है और दरार पड़ जाती है, उस दरार को चाज़म कहते हैं. So there is this deep romantic chasm. Why is it romantic? Because what is inside that chasm, inside that darar or opening, we don't know. That's why it's full of mystery. That's why it creates curiosity in the minds of the viewers. So that's why the poet is calling it romantic, because it's mysterious, it's full of curiosity. So the poet is seeing this deep romantic chasm and he is absolutely amazed in wonder, amazed by it. Ki what can be there inside that chasm?
which slanted down the green hill athwart a cedarn cover. So where is this chasm? This chasm is there in the green hill. So the hill is green. Why? The hill is green because it is covered with cedarn trees. So see the cedarn covered with cedarn trees. So there are dense cedarn trees which have covered the hill, and there lies the romantic chasm. वो cedarn trees से भरी हुई पहाड़ पे वो दरार को पोएट देख रहे हैं, वहाँ पे है वो दरार, और इसको देखकर पोएट बिल्कुल अमेज्ड हो गए हैं. And he's calling that place a savage place, as holy and enchanted. So why is it a savage place? Savage means it is wild, extremely filled with dense trees. It's wild, and it's a completely wooded place. So that's why the poet is calling it a savage place. It looks a savage place, as holy and enchanted. So see the use of words holy and enchanted. Now we know that these two are opposite words. They are contraries, holy and enchanted. Holy हम किसे बोलते हैं? Holy is something which is pure, divine, जो कि sacred है, जो हमेशा हम भगवान के साथ जोड़ते हैं, holy word. और enchanted मतलब something which is associated with magic, especially black magic. ब्लैक मैजिक जो कि बुरा होता है. तो एक तरफ है होली जो कि अच्छा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, डिवाइन है, सेक्रेड है, और दूसरी तरफ है एन्चेंटेड जो कि ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, जो कि इविल है. तो अच्छा और इविल, द प्लेस लुक्स a combination of both. It's looks holy and at the same time it looks enchanted. It's absolutely mysterious. The poet don't know what exactly the place is like. It seems both holy and enchanted to him. So you will see that the poem is full of juxtapositions, right? ये poem जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि ये full of opposites है. Life itself is full of opposites. जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुरा है, जहाँ पे white है वहाँ पे black भी है, जहाँ पे हैप्पीनेस है वहाँ पे सॉरो भी है. तो लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रारीनेस एंड सो इज़ द पोएम. तो हमने पहले देखा था कि देयर इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ एंड देयर इज़ द सिंबल ऑफ डेथ. तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे देयर इज़ द सिंबल ऑफ होली एंड देयर इज़ होली and enchanted. So the poet is using these opposite words, these juxtapositions, in order to create a sense of mystery कि क्या है exactly हमें नहीं पता. होली भी हो सकता है, होली भी लगता है, enchanted भी लगता है. तो हमें पता है कि one of the main characteristics of Coleridge's poetry is his use of supernaturalism, the sense of mystery that he creates in his poetry. So that is one of the main features of Coleridge's poem. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक supernatural atmosphere, एक haunted atmosphere वो बनाना चाहते हैं. That's why he is using such words. So the place where the chasm lies in the green hill, it looks savage, it looks holy and enchanted at the same time. It's mysterious. And the poet is comparing the place to what? He is writing that the place is as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि medieval writing से कोलरिज बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. तो मिडिएवल शिवालरिक टेल्स में अक्सर ये कहानियाँ सुनाई जाती थी. किस तरह की कहानियाँ जहाँ पे प्रिंसेसेस होती थी जो कि अक्सर चीटेड होती थी बाय डेमोनिक लवर्स, जो कि है तो सेटन, है तो डेमोन, लेकिन एक हैंडसम यूथ के यूरोप में उनके सामने आते थे और इनोसेंट लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते थे और उसके बाद उन्हें छोड़कर चले जाते थे. और ये लड़कियां, ये प्रिंसेसेस रोती रहती थी जंगल में, घने जंगल में खो जाती थी और रोती रहती थी अंधेरी रातों में. तो जब हम इमेजिन करते हैं एक ऐसा जगह जहाँ पे देयर इज दिस, द पोएट इज सेइंग दैट देयर इज दिस वेनिंग मून मतलब एक चांद जो घट रहा है, घट चुका है, मतलब जो चांद जो राउंड नहीं है, जो बिल्कुल पतला हो चुका है घटते घटते, और जिसमें से बहुत बहुत फीकी एक रोशनी आ रही है. तो वैसे एक रोशनी के नीचे एक वुमन जब वेल कर रही है, वेल मतलब रोना, ऐसा रोना कि जो आप जिसे सुनकर आपका दिल बिल्कुल क्या बोले, इट्स लाइक मतलब हार्ट रेंचिंग क्राई. सो द वुमन, तो उस तरह का रोना जब एक वुमन रोती है फॉर हर डेमोन लवर who has desolated her,
तो अंधेरी एक जंगल में घटते हुए चांद के नीचे जहाँ जहाँ से एक लड़की की, एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है, जो फूट फूट कर रो रही है फॉर डेमन लवर, तो वो प्लेस जितना हॉन्टेड दिखेगा, जितना डरावना दिखेगा रात को, ये ये हिल जहाँ पे ये रोमांटिक चाज़म है, वो उतना ही हॉन्टेड लग रहा है पोएट को. ओके. And the poet is writing then, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced. और इस चाज़म से क्या निकल रहा है? इस चाज़म से ऐसा लग रहा है जैसे ये चाज़म, ये जो दरार है धरती के अंदर, इसके नीचे की धरती, ऐसा लग रहा है जैसे ये कंटिन्यूअसली, सीजलेस मतलब कंटिन्यूअसली, जिसे रोका नहीं जा सकता, कंटिन्यूअसली टर्मोइल कर रही है. टर्मोइल मतलब अंदर कुछ फूट रहा है, बॉयल हो रहा है, लावा जैसा कुछ फूट रहा है जो बाहर निकलना चाहता है. इस चाज़म को देखकर ऐसा लग रहा है एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग. ऐसा लग रहा है. सी हियर, first of all, let's see that here is this image of a woman who is of a mother who is about to give birth to a child. तो यहाँ पे पोइट ने एक इमेज बनाया है जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस वक्त उस माँ को जैसा फील होता है, जिस तरह से वो हाँफती है और पसीने से भर जाती है और अपने अंदर से उस बच्चे को निकालना चाहती है. हाँ, तो तब वो माँ जैसे हाँफती है और कांपती है, उसी तरह से लग रहा है जैसे ये अर्थ भी हाँफ रही है, अपने अंदर से कुछ निकालना चाहती है, वो पैंट कर रही है फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए वो हाँफ रही है, ऐसा लग रहा है. तो और उसके अंदर से क्या निकल रहा है? माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स. तो धीरे धीरे जैसे एक माँ के पेट से बच्चा निकलता है, उसी तरह से जैसे वो अर्थ के, धरती माँ के अंदर से कुछ निकल रहा है. क्या निकल रहा है? अ माइटी फाउंटेन. नाउ द माइटी फाउंटेन इज द रिवर आल्फ. तो ये जो रोमांटिक चाज़म है, इट इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर, द एल्फ रिवर, जो हमने पहले देखा था फर्स्ट स्टैंजा में. तो द रोमांटिक चाज़म इज़ द इमर्जेंस ऑफ द एल्फ रिवर. तो यहाँ से एल्फ रिवर की शुरुआत होती है. तो ये एल्फ रिवर जो है वो धीरे धीरे फाउंटेन के रूप में निकल रही है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. So momently was forced, amid whose swift half-intermitted burst. Swift half-intermitted burst क्यों बोल रहे हैं? कि जैसे छोटे छोटे जर्क्स दे रहे हैं. तो क्विक जर्क्स में जैसे एक बार निकल रहा है फिर और एक बार निकल रहा है, तो ये क्विक जर्क्स में वो जो फाउंटेन है वो धरती के अंदर से, उस चाज़म के अंदर से निकल रही है. एंड ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल. और इतने फोर्स से निकल रही है वो रिवर कि उसमें सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, उसमें से जो ह्यूज फ्रैगमेंट्स है, ह्यूज फ्रैगमेंट्स मतलब बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी उसके पानी के साथ निकल रहे हैं. लाइक रीबाउंडिंग हेल. रीबाउंडिंग हेल मतलब वॉल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल, मतलब जिस तरह से हेल स्टॉर्म में जो बर्फ के टुकड़े हैं वो गिरते हैं आसमान से, उसी तरह जैसे लग रहा है जैसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े अर्थ के अंदर से निकल रहे हैं, उस चाज़म के अंदर से निकल रहे हैं. और शैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फेल. तो पोइट इसे और एक चीज़ के साथ कंपेयर करे. जैसे थ्रेशर मतलब जो गेहूं को साफ करते हैं, तो गेहूं को साफ करते समय गेहूं का जो छिलका उड़ता है हवा में, लग रहा है जैसे उसी छिलके की तरह बड़े बड़े पत्थर भी हवा में उड़ रहे हैं. ओके, सो ऐसा लग रहा है जैसे द चाज़म, द अर्थ इज़ लाइक अ मदर हु इज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. और वो मदर जैसे हाँफती है, कांपती है और क्विक जर्क्स में बच्चे को बाहर निकालना चाहती है, उसी तरह से जैसे धरती माँ भी कांप रही है और अपने अंदर से वो रिवर को निकाल रही है धीरे धीरे क्विक जर्क्स में. और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी निकल रहे हैं, जिसे पोइट कंपेयर कर रहे हैं हेल स्टॉर्म के पत्थरों के साथ और गेहूँ के उड़ते हुए छिलके के साथ. ओके. And amid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. तो ये जो डांसिंग रॉक्स मतलब जो हवा में उछल रही है, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, जो ये चाज़म के अंदर से निकल रही है पानी के साथ साथ, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, उसके साथ क्या निकल रहा है? एट वंस एंड एवर मतलब ऑलवेज. तो ऑलवेज उसके साथ क्या निकल रहा है? इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर. थोड़ी देर बाद उसमें से वो रिवर निकल रहा है. कौन सा रिवर? द रिवर आल्फ. तो वो चाज़म से वो रिवर पैदा हुई है. और रिवर जब
धरती का सीना चीर कर वो रिवर निकल रही है, जिस तरह से बच्चा निकलता है माँ के पेट से, तो उसके साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी हवा में उछल रहे हैं, इसीलिए डांसिंग रॉक्स बोला जा रहा है. तो amid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. और वहाँ से निकलने के बाद, उस chasm से निकलने के बाद, 5 miles meandering with amazing motion through wood and dale, the sacred river ran. Then reached the caverns measureless to man. तो वहाँ से निकलने के बाद, ऊड मतलब जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और डेल मतलब घाटी, तो जंगल और घाटियों से होते हुए 5 माइल्स वो रिवर बहती हुई जाती है. तो 5 माइल्स मियंडरिंग, मियंडरिंग मतलब बहते हुए जाना, इन अ मेजी मोशन, इन अ जिगजैग मोशन. तो 5 मील तक वो रिवर बहती हुई जाती है जिगजैग मोशन में, थ्रू वुड्स एंड डेल्स, जंगल और घाटियों से गुजरती हुई, और जाके कहाँ पहुँचती है? टू द केवर्न्स मेजरलेस टू मैन. याद है फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने डिस्कस किया था केवर्न्स मेजरलेस टू मैन. तो वो केव्स में जाकर जाती है, जहाँ पे वो केव्स जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, उस रिवर के तरह ही, उस चाजम के तरह ही, जो कि मेजरलेस टू मैन है, जो इंसान, आम इंसान जिसकी गहराई को नहीं नाप सकता, वैसे गुफाओं से होकर वो नदी गुजरती है और जाकर कहाँ मिलती है? एंड सैंक इन ट्यूमल टू अ लाइफलेस ओशन. सी, द ओशन इज लाइफलेस, इट symbolizes death. There's no life in the ocean. So we already have discussed that the river, the sacred river Alf, is the symbol of life, and the ocean, sunless sea or the lifeless ocean, is the symbol of death. So the river of life goes and sank down to the लाइफलेस ओशन विच इज़ द सिंबल ऑफ डेथ. तो जिंदगी जाकर मौत से मिल रही है, सेक्रेड रिवर जाकर लाइफलेस ओशन से मिल रही है. तो एक बहुत शोर बन रहा है वहाँ पे, जब वो नदी जाकर सागर से मिल रही है तो वहाँ पे एक बड़ा शोर हो रहा है, तो ट्यूमल्ट, शोर हो रहा है. तो द रिवर सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, एंड अमीड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग आवर वॉर. तो यहाँ पे खड़े होकर कुबला जब वो रिवर को ओशन से मिलता हुआ देख रहा है और जो शोर को सुन रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दूर से उसके पूर्वज, उसके एंसेस्टर्स उसे पुकार रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अब फिर से वॉर होने वाला है, तुम्हें फिर से एक युद्ध में जाना है. तो लाइफ इटसेल्फ इज लाइक अ बैटल. तो सी द वेयर द रिवर मीट्स द ओशन, द रिवर विच इज सिंबल ऑफ लाइफ, एंड द ओशन, लाइफलेस ओशन विच इज द सिंबल ऑफ डेथ. तो वो जहाँ पर मिल रहा है जाके एक शोर हो रहा है, जैसे कि एक युद्ध क्षेत्र हो, एक बैटल फील्ड हो. तो बैटल फील्ड में क्या होता है? बैटल फील्ड में भी यही होता है कि जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है, जिंदगी मौत बन जाती है, जिंदगी और मौत साइड बाय साइड चलती है बैटल में, और शोर होता है. तो उसी तरह से लाइफ भी जैसे एक बैटल फील्ड है, जहाँ पे शोर है, जहाँ पे जिंदगी जाकर फाइनली मौत से मिलती है. तो इस जिंदगी और मौत के बीच में खड़े होकर, उस रिवर और ओशन के बीच में खड़े होकर जब कुबला उसे मिलते हुए देख रहा है, तो उसे लग रहा है कि जैसे दूर से उसके एंसेस्टर्स उन्हें बता रहे हैं कि यही नियम है जीवन का, युद्ध होते आए हैं, युद्ध होंगे और युद्ध होगा. तो लाइफ इटसेल्फ इज लाइक अ वॉर, लाइफ इज इटसेल्फ लाइक इज लाइक अ बैटल. So now let's move on to the next stanza. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of eyes. So this stanza is really important. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पोइट बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो रिवर बीचों बीच में आकर, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स. जब पोइट रिवर के बीचों बीच आकर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि रिवर में जो वेव्स है वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. वो शैडो मतलब एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. किसका रिफ्लेक्शन? ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, उस प्लेजर, सनी प्लेजर डोम का एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं नदी के बीचों बीच. वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स. तो नदी के बीचों बीच मतलब कहाँ? जहाँ पे नदी वो रोमांटिक चाजम से फाउंटेन की तरह निकल रही है और केव्स में जाकर मिल रही है, ठीक उसी के बीचों बीच एक शोर भरी जगह में, जहाँ पे जब निकल रही है चाजम से तब एक शोर हो रहा है, जब केवन में जा रही है केव्स में तब एक शोर हो रहा है. तो उस दोनों शोर के बीच, फाउंटेन और केव्स के बीचों बीच एक जगह पे वो देख रहे हैं कि पानी में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, एक शैडो देख रहे हैं. किसकी? प्लेजर डोम की. और प्लेजर डोम के साथ साथ क्या है वहाँ पे? द केव्स ऑफ आइज. एंड दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस.
पोइट बोले कि इट वॉज अ मिराक्यूलस सीन, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, इट वॉज अ रेयर सीन। क्यों रेयर सीन? ऐसा लग रहा है जैसे वो रिवर कोई आर्टिस्ट है और उसने कुछ कुछ क्रिएटिव बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। क्यों? क्योंकि पोइट वहाँ पे देख रहे एक तरफ सनी प्लेजर डोम है विच इज़ फुल ऑफ सनलाइट, और दूसरी तरफ है केव्स ऑफ आइस जो बर्फ से भरी हुई है। तो देखिए अगेन अगेन देयर इज अ जक्सटापोजिशन, सनी प्लेजर डोम एंड केव्स ऑफ आइस। तो सन के साथ आइस नहीं रह सकता, तो सनी प्लेजर डोम एंड केव्स ऑफ आइस दे आर जक्सटापोजिशन। सनी विच इज फुल ऑफ वार्मथ, द प्लेजर डोम इज सनी, इट मीन्स इट इज फुल ऑफ वार्मथ एंड यूथ, जो प्लेजर के लिए रिक्रिएशन के लिए बनाया गया है वो डोम शेप्ड बिल्डिंग। तो एक तरफ वार्मथ है, यूथ है, और दूसरी तरफ देयर इज केव्स ऑफ आइस विच इज कोल्ड एंड which is absolutely pure. तो एक तरफ है warmth, एक तरफ है cold. Again, there is this combination of contrariness. तो sunny pleasure dome, caves of ice, one which represents sensuousness, the pleasure dome, it is full of sensuality, and there is this caves of ice which represents purity. There is reason and there is sense. So both of them are staying together. The opposites are staying together, and it creates a miracle of rare divides. It's an extraordinary scene. The poet is absolutely fascinated by what he is seeing on the in the reflection of the river. That there is both the sunny pleasure dome and the caves of ice. दोनों side by side है. तो poet बिल्कुल amazed हो गए हैं इसे देखकर. अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोइट ने ड्रीम में जो कुछ भी देखा है वो सारी चीज़ें एक एक लाइन उन्होंने अपनी पोइट्री में लिखा है। लेकिन हमें पता है कि इसके बाद आधा लिखते लिखते ही देयर वाज सम मैन हु केम ऑन बिजनेस टू मीट हिम, एंड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड फॉर some hour, the poet, when he came back to write down the rest of the poem, he realized that he forgot his dream, forgot his absolutely forgot about his dream, and he couldn't remember the lines. तो जब वो वापस आए उस आदमी से, उस इंसान से बात करने के बाद, तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बाकी लाइंस भूल चुके हैं, और इसीलिए पोइट अनफिनिश्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं, नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. Now Coleridge is talking about himself as a poet, and he is saying that a damsel with a dulcimer in a vision once I saw. The damsel means a beautiful lady. Dulcimer is a musical instrument like a violin. So उन्होंने वो बोल रहे हैं कि इन अ विजन वंस आई सॉ, एक दफ़ा सपने में मैंने देखा था कि खूबसूरत सी डैमजिल अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में एक बहुत खूबसूरत सी साज बजा रही है मेरे सपने में आकर. इट वॉज एन अबीसीनियन मेड. अबीसीनियन मेड मतलब slave woman from Abyssinia, and on her dulcimer she played singing on Mount Abora. ऐसा लग रहा था कि जैसे माउंट अबोरा बोलकर किसी एक माउंटेन में बैठकर वो अपने ही मन में अपनी ही कोई एक खूबसूरत सा धुन, कोई एक खूबसूरत सा साज बजा रही हो, और मैं बिल्कुल खो चुका हूँ उसके धुन में. तो a damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played singing on Mount Abora. Now this Mount Abora is again a fictional mountain, and it is also a reference to मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में हमें माउंट अमोरा का रेफरेंस मिलता है. शायद वहीं से पोइट ने अपना इंस्पिरेशन लिया था और माउंट अबोरा उन्होंने क्रिएट किया, विच इज़ अगेन एन इमेजिनरी माउंटेन. तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि मैंने एक सपना देखा था जहाँ पे ऐसा लगा कि कि एक बहुत खूबसूरत सी डैमज़ेल आकर अपनी एक खूबसूरत सी धुन बजा रही है, कुछ गा रही है, और वो इतना खूबसूरत है, लेकिन मैं वो अब भूल चुका हूँ. तो यहाँ पे वो अपने सपने के बारे में बात कर रहे हैं जो वो भूल चुके हैं. एंड ही इज सेइंग दैट कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग. तो अगर काश मैं अपने अंदर उसका वो धुन, उसकी वो गीत मैं फिर से जगा सकता, क्योंकि वो सपना भूल चुके हैं. तो ये वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं उसे फिर से जगा सकता, फिर वो मुझे याद आता, वो धुन, वो गाना, वो सपना, वो लाइंस फिर से काश मुझे वो याद आते. तो टू सच अ डिलाइट इट वुड विन मी that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome and those caves of ice. तो अगर मैं वो गाना, वो सपना याद कर सकता, तो वो मुझे इतनी खुशी देती, टू गिव मी सच अ डीप डिलाइट, कि दैट म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग, उस म्यूज़िक से, उस खूबसूरत लॉन्ग लाउड म्यूज़िक से आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, द सनी डोम एंड द केव्स ऑफ आइस. इन एयर मतलब इन माई इमेजिनेशन आई वुड हैव
created using my imagination that pleasure dome of कुबला खान, जो कुबला खान ने बनाया था, उससे भी बहुत खूबसूरत एक डोम, वो सनी डोम, वो केव्स ऑफ आइस, जो कुछ भी मैंने सपने में देखा था, जो कुछ भी इतना खूबसूरत था, इतना रेयर था, जो कुबला खान ने बनाया था, मैं वो खुद बना देता इन माई इमेजिनेशन थ्रू माई पोइट्री. And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honeydew hath fed, and drunk the milk of paradise. And the poet is saying that I would have created such a song, such a beautiful poetry, such a vivid poetry, if I only could remember her song, her music that I experienced in my dream, जो मैंने सपने में देखा था, वो गाना, वो लाइन्स अगर मुझे फिर से याद आ जाती, तो मैं कुछ ऐसा बनाता कि जो भी मेरे कविता को सुनते, they would, वो अपनी आंखों के सामने उस प्लेजर डोम को देख पाते, वो केव्स ऑफ आइज, वो रिवर, वो ओशन, सारा कुछ अपने आंखों के सामने देख जाते. एंड ऑल शुड क्राई, beware, 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 beware in किस लिए वो बोलते beware, beware in out of wonder and fear. उन्हें डर भी लगता और एक क्यूरियोसिटी भी होती कि एक आम इंसान कैसे कुछ ऐसा बना सकता है, एक पोइट कैसे कुछ ऐसा बना सकता है. His flashing eyes, his floating hair, और वो देखते हैं कि I'm not a normal human being. The poet is saying that a poet is not a normal human being. He's like the sun god Apollo with his flashing eyes and floating hair. So he sees flashing eyes and floating hair. Here Coleridge is trying to create the image of Apollo, the Greek sun god. तो सन गॉड को अपने सामने देखकर जैसे डर लगेगा, लोग वंडर भी करेंगे, अमेज्ड भी होंगे, उन्हें वर्शिप करने का भी मन करेगा, और एट द सेम टाइम उन्हें थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि सन गॉड इतने पावरफुल है. तो द पोइट इज सेइंग दैट the Coleridge is saying that a poet is not a normal human being. I, being a poet, I'm not a normal human being. I can create such things that only a powerful creator like emperor like Kubla Khan can create. I can create such things, and that too using my poetry, that everyone who would see me, they will cry, beware, beware, his flashing eyes and his floating hair. So see here, the poet is not a normal person. Here, the poet is like a god who should be worshipped and who should be dreaded at the same time. और वो बोल रहे हैं कि जो भी मुझे देखेंगे वो इतने वंडर हो जाएंगे, वो इतने अमेज्ड हो जाएंगे that they would weave a circle round him thrice. So this is again a medieval reference. Coleridge was very much fascinated with medieval tradition, medieval stories. तो वो बार बार अपने हर पोइट्री में medieval tradition के medieval references देते हैं वो. तो यहाँ पे दिस वाज अ medieval superstition कि लोग अपने चारों तरफ लाइन खींच देते थे जाके, ताकि हर जो पावरफुल शक्ति है, जो बुरी शक्ति है, वो उनसे दूर रहे. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मुझे देखकर मैं इतना आई कुड हैव बीन सो पावरफुल कि मुझे देखकर वो डर जाते. एट द सेम टाइम उन्हें रिस्पेक्ट भी होता मेरे लिए, और वो अपने चारों तरफ लाइन खींच लेते ताकि वो सेफ रह सके, मुझसे डरे नहीं. And close your eyes with holy dread, for he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. और लोग जो मुझे देखते, जो मेरे क्रिएशन को देखते, मेरे पोइट्री को देखते, वो अपनी आंखें बंद कर लेते with holy dread. See again a juxtaposition, again a use of opposite words. Holy and dread. Holy is something which is sacred and pure, and dread is something which is terrible. तो एक डर भी लगता और वो हैरान भी होते कि एक कोई इंसान ऐसे कैसे बना सकता है. तो उस होली ड्रेड में वो अपनी आंखें बंद कर लेते मुझे देखकर, क्योंकि उन्हें पता है कि आई हैव ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड. हनी ड्यू इज एम्ब्रोसिया एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. द मिल्क ऑफ पैराडाइज, नेक्टर, जिसे हम अमृत कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पोएट अमृत पी कर आया है, क्योंकि ये इमॉर्टल है, क्योंकि हम इससे नहीं लड़ सकते. तो हियर द पोएट इज talking about the power of poetry, that what can a poetry do. A poet is not a normal human being. A poet is not a normal human being in the sense a poet is not an ordinary man. He has got the power to create something which is immortal. He has got the power to immortalize himself through his poetry. तो इसीलिए कोलरिज इज सेइंग दैट जो भी मुझे देखते वो उन्हें पता होता है कि आई हैव ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. मैं अमृत पी कर आया हूँ. अमृत किस लिए? अमृत हमें क्या करता है? अमृत हमें इमॉर्टल बनाता है.
तो सिमिलरली एक ही काम करती है पोइट्री भी। पोइट्री कोलरिज आज से कितने सालों पहले ये पोइट्री लिख कर गए हैं, लेकिन आज भी हम ये पोइट्री पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं, तो वो मर कर भी नहीं मरे। So that is the power of poetry. It can immortalize the poet. So the poet is saying that if only I could remember that song that I have forgotten, if I could only remember the dream once again, and if I could only revive the lines within me, तो मैं कुछ ऐसा बनाता, एक ऐसा पोएट्रिक क्रिएशन बनाता कि जो भी मुझे देखते वो मुझे एक गॉड की तरह वर्शिप भी करते और डरते भी, जो जिन्हें जिन्हें पता होता कि मैंने खुद को इमॉर्टल बना दिया है थ्रू माई पोएट्री. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री. हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ आर्ट, द पावर ऑफ पोएट्री, हाउ पोएट्री एंड अ पोएट कैन इमॉर्टलाइज हिमसेल्फ एंड हिज वर्क. Okay, so this is it. This is all about Kubla Khan. I hope you have understood the poem, and you can understand that the poem is about life. The poet is about how the power of poetry. It celebrates the power of poetry. It celebrates the power of a poet who has the ability to immortalize himself, the ability of art to immortalize the artist. Okay, so this is about it. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बहुत सारे और भी लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें. थैंक यू सो मच.